जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 603rd एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस। सो टुडे व्हाट अ ग्रेट डे ओवरऑल इन द मार्केट्स। एंड सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो टुमारो विल बी अ ग्रेट डे। टुमारो वी हैव yeah, so we have the weekly expiry. The US inflation data is out, and we are seeing, the result of that. And let us discuss all these things. दोस्तों एक बार मैं अपडेट दे देता हूँ कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है दैट इज स्केड्यूल्ड ऑन August 13th and 14th. And if you are interested, you can register for this training. And a lot of topics we are going to cover. We have revised some of the topics, some of the content, and the charges are also updated. And Telegram group support is for 3 months, and this will be a 2 days training from morning 9 to evening 6. So it will be almost 9 to 10 hours of training on both the days. So it will be little in depth and hectic. All right, channel को like, share, subscribe करना ना भूलें. And let us start today's session. Once again, welcome everybody. It is 10:30 right now, pretty late, but today entire day was very hectic. All right, so where are we in the larger scheme of things? So सबसे पहले uh, US inflation data 9.1%. So it is not a shocker because pretty much 9% was factored in. But why the markets are positive? The markets are positive because जो उसके इंटरनल्स हैं, जो एक जो डेटा कैलकुलेशन में जो वेरिएबल्स की जो इनपुट होती है, the internals have improved. Okay, so on the face of it the data looks bad, uh, but the internals of which जो core inflation variables हैं, they have dropped. Okay, so that is why the markets are cheering even on a bad data. Now one thing which you should know, that if the prices are heading at supports and if there is a data to be released and that data happens to be a bad data, generally market जो है bounce करेगा. Why? Because the markets, they are discounting mechanism, or market जो है going into a resistance on good news, market tends to undergo profit booking, thereby results in a decline. Going into a support on a bad news, then the markets generally turn higher. Now if you remember, 3-4 days back I said that 3920, this is the resistance zone for S&P 500, and we should head back towards 374020, and this is the area where you should be ready to buy the S&P 500. And if you see 100 points, almost 90 to 100 points की छलांग जो है, ये एक ही दिन में इंट्रा डे में ये आज हो चुका है. 3830 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है S&P 500. सो इट हैज प्रीटी मच रिक्लेम्ड ऑल द लॉस्ट ग्राउंड. दिस इज वंस अगेन अ बैंग ऑन एनालिसिस. अगर है तो शो मी अ थम्स अप, अगर नहीं है तो भी शो मी अ थम्स अप. नाउ Nasdaq की बात करेंगे. सो Nasdaq is again higher. Nasdaq is also trading in that same pattern. So Nasdaq is also bullish. So all these markets, they are pretty much bullish, but we need to continue the momentum uh, in for tomorrow and maybe for next week also, because time is running short. It has been many days since the S&P 500 made this bottom right in June. So almost 30 days, एक महीना जो है ये होने को आ रहा है. And in couple of days we will be heading into the expiry on the in the US market. So we need to take out this 3920. This must be taken out because अगर ये हम जल्द से जल्द आने वाले 2-4 दिनों में अगर इसे नहीं ब्रेक करेंगे, then I think US market will make a new low. So 3920 must be taken out, or else I am scared that the US market will not hold next time. We have uh, come here for second time. अब third time में जो है मुझे नहीं लगता कि market hold करेगा. And this will certainly be accompanied with a bad geopolitical news. Pretty much इस बात पे जो है हम sure हो चुके हैं कि या तो 3920 कट करे, and then there will be a very huge rally all the way till 4100 4200.
बट अगर ये नहीं होता है आने वाले 2-4 दिनों में और 3700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यूएस मार्केट जो है ये खतरे में आ जाएगा एंड आई थिंक वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेग ऑफ अ डिक्लाइन. सो वी हैव टू बी केयरफुल. एज ऑफ नाउ चीज़ें जो है ठीक हैं, थिंग्स आर लुकिंग ओके, थिंग्स आर बुलिश. लेट्स टॉक अबाउट द यूएस डॉलर एट द मोमेंट. सो यूएस डॉलर को अगर हम देखते हैं तो आज ड्यू टू द pretty much data which was factored in, US dollar is making a double bar high lower closing pattern. Double bar pattern है basically, but this doesn't mean anything till we do not take out the support areas. So pretty much अभी भी US dollar strength में है. Rising wedge structure जो हमने डिस्कस किया था, it has gone above the rising wedge structure, but यहाँ से overthrow एक हो चुका है. बट जब तक यूएस डॉलर इस लेवल के नीचे सक्सेसफुली नहीं आता प्रॉपर तरीके से, यूएस डॉलर को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए. एंड there are a lot of fund houses like the lot of hedge funds and all who are sitting on huge losses because of the move in the US dollar. And there is a chatter in the market that if the US dollar doesn't fall sooner or later, what will happen is it will result in the bankruptcy of some hedge funds, and that can become a tail risk for the market. Okay, now don't forget that during 2008 the bankruptcy news and all, it started to come somewhere in August, and we are in the mid July. So if US dollar remains at higher level, I think that scenario is going to be repeated again in this year. Yeah, so that's the update on the US dollar, euro USD और ब्रिटिश पाउंड की तरफ एक बार चलते हैं. सो यूरो और ब्रिटिश पाउंड में आज अगेन इंट्रा डे जो हमने ग्रुप में जो ट्रेड्स दिए थे फॉरेक्स फ्यूचर्स एनएससी फॉरेक्स फ्यूचर्स में, दे वर फैंटास्टिक. एंड टुडे अगेन वी बॉट द यूरो, वी बॉट द जीबीपी आईएनआर, और बहुत ही शानदार दोनों में. हालांकि बहुत बड़े गेंस यूरो में ठीक अच्छे गेंस थे, जीबी में छोटे गेंस थे, बट ओवरऑल अ वेरी satisfactory day in the forex market. Now the euro, it has taken support, it has crossed the previous day high, as you can see in this chart. After so many days, we have successfully taken out the previous day high. It's been after like ages that we have taken out the previous day high. So as you can see, right from this swing high, which was made somewhere in the last week of June, after so many days, for the first time, we have taken out the previous day high, which is a good sign. And intraday briefly यूएस जो यूरो है, इसने डॉलर पैरिटी को ब्रेक भी किया था. दैट रिजल्टेड इन सम टर्बुलेंस इन द मार्केट फॉर some time, and then it has bounced back. So overall I'm positive on the euro, but a lot will depend on tomorrow's situation. मतलब कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरो बाय द टाइम वी ओपन टुमारो यूरो कम्स डाउन अगेन. अगर ये सिचुएशन होगा तो फिर कल यूरो पे काफी प्रेशर होगा, एंड आई थिंक देन मार्केट्स विल आल्सो कम अंडर बेयर अटैक. सो नेक्स्ट 24 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का फाइनलाइजेशन होगा. अगर यूरो वगैरह जो है अगर संभल जाएंगे तो डॉलर में एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, डॉलर नीचे आएगा. That will give boost to the equity markets, which have already started to show some bounce. So that will basically help the bullishness in the euro, in the pound, in the equity markets to continue. ओके, देखो एक बाउंस होना अलग चीज होता है, और उस बाउंस के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेंड में कन्वर्ट होना ये एक अलग बात होता है. ठीक है, सो वी नीड दैट कन्वर्जन, एंड दैट कन्वर्जन विल हैपन ओनली ड्यू टू द बुलिशनेस इन द यूरो एंड द बेरिशनेस इन द डॉलर. So that's the view over there. Now let's look at the GBP INR or British pound. So that has also staged a nice rally today after the news. So bad data, but it turned out to be good for these currencies. So what I like about British pound is that yes, even that has staged a good comeback. Yesterday's candle was pretty small. So I like the बाउंस टुडे इन दीज करेंसीज, बट अगेन कल हमें फॉलो थ्रू चाहिए. बिना फॉलो थ्रू के
इनका कोई मतलब नहीं है. वी आर सिटिंग at a great location. If we manage to take out some resistance, it will be a very nice up move. But if we fail to do so, it will be a very nice down move. So that is the risk right now. So next 12 hours, I would say, by the time Nifty opens, next 12 hours especially जो है ये काफी केयरफुली मार्केट में चलना है. So that's all on the currency market. USD JPY it is doing nothing. 137 के आसपास है. इसने जो है एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे जो है एक नॉट ऑल टाइम हाई बट अभी जो है हाई प्रिंट किया है 138 के आसपास. आई थिंक इट विल टुमारो इट विल एक्सप्लोड मच हायर. टुमारो आई थिंक 139 शुड कम. Holding today's low, I think tomorrow 139 should come. Now let's have a look at the फॉरेक्स फ्यूचर्स. तो एक बार हम यूएसडी आईएनआर को चेक करते हैं. सो यहाँ पे लगभग 80 रुपए जो है हम हिट हो चुके हैं. सो अगेन द ट्रेंड इज बुलिश. 80 रुपीज इज द एक्सपेक्टेशन. एंड राइट नाउ कल के लिए लेवल्स थोड़े वाइड हो जाएंगे. एंड टुमारो मॉर्निंग वी विल हैव टू सी वेयर वी ओपन. Broadly speaking, we have support at 79.4, 79.3. So if we see any good correction, then only we should buy, or else we should avoid it, because this is the place of RBI. So 80 के आसपास जो है RBI काफ़ी एक्टिव है. So RBI is very 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 active. Okay. So बहुत ही मुश्किलात में आपको RBI जो है डाल सकते हैं अगर आपने यहाँ पे गलत कुछ ट्रेड्स लिए तो. सो ट्रेंड इज बुलिश. 79.3540 पे जो है बाय कर सकते हैं. 79 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 80 एंड देयर अबाउट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरो आईएनआर. सो यूरो आईएनआर में कल जो है हमने यहाँ से एक लॉन्ग जो किया था, बहुत अच्छा कल मूव मिला. आज के लिए मैंने आपको कल रात को बताया था कि आज अगर हमें यूरो में कोई डिप मिलता है, ओके, टू ट्रेड्स आई हैड गिवन. नंबर वन, इफ वी ओपन गैप अप देन ट्राई टू शॉर्ट एट दीज लेवल्स, बिकॉज इवनिंग में डेटा है तो मार्केट जो है एक करेक्शन देगा उसके पहले. दूसरा था कि अगर हम फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तो ट्राई टू बाय इन दिस एरिया, ओके, नियर 79.980 यहाँ पे बाय करें एंड टारगेट होगा दिस गैप फिलिंग. सो टुडे वी गॉट दिस अप मूव. सो दिस वाज फैंटास्टिक. एंड 80.3740 तक जो है ये मूव गया था, विच वाज द सपोर्ट टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस. और इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है. थोड़े जो पोजिशनल ट्रेड्स हैं इसे हमने रखा हुआ है. एंड एज ऑफ नाउ जो यूरो यूएसडी का लेवल है, अगर कल वहाँ पे ये खुलता है देन वी वुड सी द यूरो ट्रेडिंग समवेयर हियर. ओके. सो लेट्स सी. अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कल यूरो नीचे खुल जाए. सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द स्पॉट यूरो मार्केट एंड द यूएस डॉलर. नाउ सो व्हाट्स द ट्रेड प्लान फॉर टुमारो? आई थिंक इट्स सेम, प्रीटी मच सेम है दोस्तों, कि अगर आप इस लेवल के ऊपर खुलते हैं लाइक 80.5, 80.6, if you open above this level then it's a sign of strength. And euro is most likely to go towards 81.20, 81.37. those will be the levels if you open higher. ये जो लेवल्स हैं ये टारगेट्स होंगे एंड दोनों टारगेट मीट होंगे. फ्रेश ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा. सो फ्रेश ट्रेड अगर इन दैट केस अगर आपको लेना है तो आपको वेट करना होगा. जो आज का रेजिस्टेंस है, दिस एरिया will act as a support. So if you see some cooling effect happening then you can buy. ठीक है, then you can buy again. और ये आपका फुल एंड फाइनल जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा कुछ इस तरीके से. तो इस तरीके से आप एक पूरा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. सो दिस विल बी योर 1 2 एंड थर्ड का ये 1 2 एंड देन अ बिगर मूव टुवर्ड्स 81.4 एंड देयर अबाउट्स. सपोज अगर कल गैप डाउन खुलता है तो किसी भी प्रकार का लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग इज नॉट डिजायर्ड. इनफैक्ट आई थिंक फिर वो हो सकता है शायद इस बॉटम को ब्रेक करे एंड फिर एक मेजर डाउन ट्रेंड वापस से रिज्यूम हो जाए. सो प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल. ओके, कल और परसों ये 2 दिन बहुत ही क्रूशियल हैं. Let's talk about GBP INR. So this is sitting on a verge of a breakout, and since couple of days it is trying its best to break above this level 95.20. This remains the line in the sand. अगर हम 95.20 के ऊपर दोस्तों गैप अप करते हैं then I think it will result in a big move, and I won't be surprised अगर 95.8 कल का कल हमें दिख जाए.
सो इन दैट केस अगर हम 95.20 के ऊपर खुलते हैं, कोई भी डिप अप टू 95 तक, यानी ये जो 15 पैसा है यहाँ पे, ये आपका अगर हम यहाँ खुलते हैं, ये आपका बाय ऑन डिप फॉर 95.80। ओके, एंड स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस 20-25 पैसे का आप यहाँ पे रख सकते हैं 94.75। ठीक है, ये एक ट्रेड है। फ्लैट ओपन अगर होता है देन आई थिंक आज के लॉन्ग्स जो भी बचे कुचे हैं उन सबको हम बुक करेंगे, 95.20 देखेंगे, अगर क्रॉस नहीं करता है तो निकल जाएंगे, एंड प्रोबेबली यू कैन ट्राई अ शॉर्ट ट्रेड विथ जस्ट 20-25 पैसे, 20-25 पैसे के स्टॉप लॉस से, एंड यू कैन टारगेट ऑल द वे बैक टू 94.20 एक्सेट्रा। क्योंकि यूरो और पाउंड दोनों ही एक ऐसे सिचुएशन में है जहां से अगर ये दोनों ब्रेकआउट कर देते हैं या ये दोनों ट्रेंड को पकड़ लेते हैं, then they will go higher, much higher in coming days. So there will be a continuous buy on dip type of a trade. But अगर ये कल परसों में अगर ये दोनों नहीं क्रॉस करते हैं, देन आई थिंक दे विल गो ऑल द वे एंड मेक न्यूअर लोज। तो इन केस ऑफ दिस जीबीपी आईएनआर आप देख सकते हैं कि 94.20 ये अभी तक का ये बॉटम रहा है फ्यूचर्स चार्ट में। सो इफ वी डू नॉट ब्रेक अबव 95.20 वी आर हेडिंग, if we do not break 95.20 then we are heading all the way towards 94.20, and I think much below that, I think 93.5 should also come। ठीक है, सो इस चीज को जो है ध्यान देना है, 95.20 के ऊपर ही हमें इसको देखना है बुलिश साइड में। ठीक है, दैट्स अबाउट इट। एंड जेपीवाई जो है दैट इज स्टिल बेरिश, एंड इस पे सेम व्यू है मेरा जो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेल ऑन राइज करना है, व्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जब तक ये 59 को नहीं क्रॉस करता है सेल ऑन राइज करें। 57.5 से 57 के दरमियान जो है इसका टारगेट है, एंड आई थिंक इसमें अभी 3 बार हम खेल चुके हैं, अभी वापस फ्रेश जो है अभी प्ले चालू है इसमें। ठीक है, सो प्रीटी मच दैट्स ऑल ऑन दी व्हाट ऑन दी फॉरेक्स फ्रंट। एक बार हम आते हैं कमोडिटीज मार्केट में, जहां पे आज जो है एक मिक्स्ड बैग सॉर्ट ऑफ हमें परफॉर्मेंस दिखा है। सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे जो कि आज ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। सो आपको याद होगा कि परसों रात को आई थिंक आई हैड टोल्ड यू कि 580 पे एक बाई ट्रेड है, और अगर 580 पे आप बाय करते हो तो 560 वाला जो है, सॉरी 460, 480 पे आपका एक लॉन्ग ट्रेड है, एंड विच इज दिस कैंडल हियर 481, राइट। एंड इसके नीचे वाला जो कैंडल है या थोड़ा इसके नीचे है समवेयर अराउंड 460, यू शुड कीप दी स्टॉप लॉस, एंड टारगेट जो है वही लगभग 540 एक्सेट्रा, 560 एक्सेट्रा रहेंगे। सो नेचुरल गैस आई थिंक इट इज गोइंग, इट हैज हिट दी अपर सर्किट टुडे। अभी ग्रुप में 1-1.5 घंटा पहले ही मैंने कहा था कि अपर सर्किट आज हिट करेगा, सो इट हैज हिट द अपर सर्किट, एंड दिस इज अ वेरी रॉकिंग ट्रेड। So if you are having natural gas, then you can book profits. It is a very huge jump. 50 days in hardly like 2 days, 50 points in just 2 days. So it's a big jump. You can definitely book your profits. अगर आपको और रिस्क लेना है तो इसे आप होल्ड करो, एंड मे बी टुमारो यू कैन गेट 575 एज वेल। ठीक है, सो बिकॉज इट इज it's a do or die situation. So if it is able to take out the resistance straight away, ये 40-50 पॉइंट और जाएगा, and maybe it can make a inverse head and shoulder pattern also। ठीक है, सो यू इट्स योर चॉइस, आप बुक कर सकते हो, मल्टीपल लॉट्स है तो यू कैन बुक वन, यू कैन कीप वन, दैट वे ऑल्सो यू कैन डू। और वापस से हम 480 के आसपास देखेंगे, सो वी विल सी, अगर 480 पे आता है तो वापस से बाय करेंगे, दैट्स द व्यू। कॉपर की बात करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली कॉपर में आज हमने एक ट्रेड लिया था जिसमें आफ्टरनून के सेशन में जो है एक अच्छी अपमूव आ रही थी, बट देन इवनिंग में जब यूएस का डेटा आया तो उस वॉलेटिलिटी में जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हालांकि स्टॉप लॉस ठीक था, काफ़ी रीजनेबल सी, दिस वाज द स्टॉप लॉस हंट। सो मॉर्निंग वी बॉट हियर एंड इट स्टार्टेड टू गो अप वेरी नाइसली, इनफैक्ट ये 4-5 रुपए प्रॉफिट में भी जा चुका था, एंड देन हियर ऑल्सो इट केम इन प्रॉफिट, बट ड्यूरिंग द डेटा टाइम इसका जो है स्टॉप लॉस हो गया। सो कॉपर में थोड़ा सा हम और वेट करेंगे। आई थिंक दिस मूव इज अ वेरी नाइस सेलिंग क्लाइमेक्स, बट आई वुड लाइक टू वेट फॉर सम टाइम, एंड मे बी कॉपर में कल जो है शायद हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। सी कॉपर इज सिटिंग एट प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑन द कॉमिक्स। तो कॉमिक्स पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, कॉपर उस
के सपोर्ट पे है। एमसीएक्स में कॉपर बहुत ऊपर है। वाई? बिकॉज ऑफ द यूएसडीआईएनआर। सो यूएसडीआईएनआर 74 से अब लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। सो दैट इज वाई द प्राइसेस आर वेरी सिग्निफिकेंटली हायर फ्रॉम द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। ओके, जस्ट बिफोर द कोविड जो हाई था कॉमिक्स के टर्म्स में कॉपर इज हियर। ओके, एंड एमसीएक्स के टर्म्स में कॉपर इज हियर। सो एमसीएक्स के टर्म्स में कॉपर इज एट 630 और कॉमिक्स के टर्म्स में कहूँ तो कॉपर इज एट 460। इमेजिन 180 पॉइंट का जो है डिफरेंस है, दैट इज वेरी ह्यूज। एंड सो ये इतना बड़ा गैप जो है ये रिड्यूस अब कैसे होगा? इट विल टेक मैनी मंथ्स एंड मे बी कपल ऑफ ईयर्स, एंड देन स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये दोनों का जो है एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सो आई थिंक व्हाट विल हैपन इज दैट कॉपर in the medium and long term on MCX, it is going to remain under pressure. So after some technical pullbacks are done, ठीक है, एक बार मान लो कोई पुलबैक वगैरह आ जाएगा, जो आगे की जो कॉपर की मूव्स होंगी आने वाले महीनों में, उसमें आई वुड लाइक टू प्ले मोस्टली ऑन द बेयर साइड। ओके, बिकॉज शॉर्ट्स जो है ना ये कॉपर में एग्रेसिवली वर्क करेंगे, एंड दैट गोज वेल फॉर इवन जिंक एल्यूमिनियम also, because of the surge in USDINR, all these prices are trading at a very high level. सो प्रीटी मच दैट्स इट। गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे, सो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं है। गोल्ड में आज शाम को एक बहुत अच्छा एक लॉन्ग ट्रेड था। ओके, विच वाज एट हियर 50,200, जस्ट नियर द प्रीवियस बॉटम, एंड बिकॉज द न्यूज वाज फेवरेबल टू गोल्ड, आई थिंक ये एक अच्छा ट्रेड था। ओके, बट अगेन you need to act on your feet, because those are the times when you need to be very sure of what you're doing, नहीं तो फिर आपको लॉस हो जाएगा अच्छा खासा। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है। प्रॉब्ली थोड़ा और ऊपर जाएगा तो हम शॉर्ट साइड में आएंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं है। सो इफ यू हैव टेकन अ लॉन्ग ट्रेड, आई थिंक इट्स वाइज टू जस्ट बुक नियर 51,000, क्योंकि 51,000 कॉपर सॉरी गोल्ड का एक मेजर रेजिस्टेंस है। सिल्वर में इस समय कोई ट्रेड नहीं है, एंड दैट सम्स अप ऑल। हाँ, क्रूड बाकी है। सो क्रूड में हमने जो है बहुत ही बम्पर ट्रेड्स आज लिए हैं, कल भी लिए थे। सो इंट्राडे लॉट ऑफ स्विंग्स, वी हैव गॉट लॉट ऑफ स्विंग्स टुडे। लेट मी जस्ट शो यू द इंट्राडे चार्ट। तो क्रूड में हमने जो है मॉर्निंग में सबसे पहले बाई किया यहाँ पे, बहुत ही प्रिसाइज जगह पे बाई किया, देन वी गॉट वन जंप, देन इट वाज ट्रेडिंग इन अ बिग रेंज। ये डेटा के समय आया। ओके, अगेन यहाँ पे जो है बाइंग हुई, अगेन देयर वाज अ जंप, अगेन पुश बैक, अगेन जंप, एंड अगेन वी हैव बॉट, एंड इट इज राइट नाउ नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। ओके, सो एक दो तीन चार कपल ऑफ स्विंग्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्विंग्स हो चुके हैं। नाउ द थिंग इज वी आर बुलिश ऑन क्रूड, ओके, फ्रॉम अ पोजिशनल बेसिस, बट लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट द डेली चार्ट कि आज हम कहाँ क्लोज कर रहे हैं। सो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, क्रूड अगेन यही प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉमिक्स पे सपोर्ट पे है, बट एमसीएक्स पे थोड़ा सा गैप वाइड है। यानी कॉमिक्स के टर्म्स में मैं कहूँ तो 7100 पे क्रूड है। ओके, कॉमिक्स के टर्म्स में कहूँ तो 7100 पे क्रूड है, बट एमसीएक्स में 7640 पे क्रूड है। तो ये अंतर इतना ज़्यादा है, जिस वजह से कॉमिक्स पे थोड़ा सा भी मूव नेगेटिव में जाता है तो एमसीएक्स पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, सो आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इट्स अ सिग्निफिकेंट टॉपिक विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रेडिंग कमोडिटीज इन द कमिंग फ्यूचर फॉर मेनी मंथ्स, बिकॉज ये हर कमोडिटी का जो गैप है ये ग्रेजुअल तरीके से जो है एलिमिनेट होगा बाय मार्केट फोर्सेस ऑन देयर ओन। So what will happen is that the short side moves will be preferred in MCX। ठीक है, सो अगर कोई चीज रेजिस्टेंस पे है तो ये सोचना कि ये इसे ब्रेक करेगा या ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, ऑटोमेटिकली द ऑड्स विल स्टार्ट टू फेवर द ब्रेक डाउन थिंग, राइट। सो इस चीज को ध्यान में रखना है। ये चीज कहाँ उपयोग में आएगा? ये चीज जब कोई मेजर रेजिस्टेंस वगैरह दिखेगा तो वहां पे इस चीज का यूजफुलनेस है, बिकॉज ओवर देयर यू विल नॉट आर्ग्यू विद द प्राइस कि मैं देख लेता हूँ या वॉच करता हूँ। नो, इफ इट इज एट रेजिस्टेंस यू आर ट्रेडिंग एमसीएक्स, देन काइंडली बुक द प्रॉफिट्स। ओके, सो ये आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड आई होप इस चीज को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है। नाउ
Having said all these things, what is the situation right now? As you can see, we are at a fantastic level. बहुत ही शानदार लेवल है ये. So all those people who have earned money today in crude, if you have your house money, you are willing to take the overnight risk, only then you carry, or else आप carry मत करो. Okay. So I leave it on you. Why? Because see, we are at a fantastic place. ठीक है. अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो मैं बोलता बिंदास लॉन्ग करके जाओ. सो थोड़ा सा एक ये एक थर्ड एलिमेंट है, थर्ड वेरिएबल है. बट माई बेट इज इफ यू हैव अर्नड मनी ओनली देन यू कैरी द ट्रेड, और एल्स यू कैन सिंपली एग्जिट, और कल आप फ्रेश जो है ट्रेड कर सकते हो. होल्डिंग these levels, I think crude once again should go 8200 minimum. Okay. So basically, 7600 say 7550, 7500 say basically this is the zone for support. And I think this 8300, 8400 is a maximum ceiling. So I think crude is going to trade pretty much in this big range till the expiry. ये मेरा अनुमान है. हाँ, अब अगर कल 7500 या उसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर क्रूड बेरिश हो जाएगा. ओके, सो इन दैट केस क्रूड विल गो टिल 7200. so that's the update in the oil market. So pretty much that's all. Let's go very quickly towards the nifty and bank nifty. So let us open the chart of nifty and bank nifty. And जो लोग अभी जुड़े हैं आप सभी को नमस्कार. Book 350 point in Bank Nifty intraday, my biggest ever. All thanks to your mob level and guidance. Looking forward to a training. Thank you so much. Okay. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो बहुत ही सिंपल सा दिन था. अगर आज आपने पैसा नहीं कमाया निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मेरे ख्याल से फिर मार्केट में आप काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज कल सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका था. प्रोफाइल वाइज मैंने आपको बताया था कि बहुत कल अच्छी सेलिंग आई है, कोई भी अप मूव आएगा सीधे शॉर्ट करो. दूसरी बात कि कल आपको दोस्तों याद होगा तो मैंने एकदम क्लियर कट आपको बता दिया था दैट वी आर टारगेटिंग दिस 15,950 एरिया. दिस वाज द लेवल. नाउ व्हाई I specifically said that this level will come in the market क्योंकि ये हमारा एक खास एक लेवल है. ओके, एंड दिस मेथड वी टीच इन द ट्रेनिंग in the topic of trading with mob levels and एडवांस वीवैप ट्रेडिंग. सो इस बार इस वीकेंड में जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया है दे हैव एवरी डे सीन द यूजफुलनेस एंड द पावर ऑफ दैट टेक्निक. so and they are really surprised कि ये कैसे हो रहा है हर बार. So that was the target and this is done today. Now what is the view for tomorrow's session? So now the view is very interesting. Why? Because we have now corrected from 16,250 to 15,950. So a good 300 points correction has happened in the market. So these were our resistances if you remember, and this is our likely support. So थोड़ा सा 15,900 के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है. ओके, सो इफ यू रिमेंबर इन लास्ट कपल ऑफ सेशंस आई हैव सेड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ड्रिफ्ट लोअर इन दिस सॉर्ट ऑफ मैनर wherein the price drift is not sharp but it is gradual in nature. So लास्ट टाइम 5 दिनों का ये करेक्शन था दोस्तों और अभी हम 4 दिन कर चुके हैं. राइट. सो आई थिंक वी आर टुमारो विल बी अ डिसाइडिंग डे. कल का प्लान तो बड़ा ही सिंपल है. आई विल जस्ट कम विद द प्लान एंड लेट मी टेल यू 15,900 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर दिस मार्केट. 15,880 से 900 बिकॉज आई थिंक अगर मार्केट ने इस लेवल को होल्ड करके एक बाउंस जनरेट किया तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो फिर मार्केट थोड़ा और डीपर करेक्शन में जाएगा. 15,600 तक मार्केट फिर जा सकता है. सो दिस इज द लेवल आई वुड एक्सपेक्ट मार्केट टू नॉट गिव अप सो इजली because if it holds this level and starts to go higher there will be further levels which can come very very easily. but अगर ये 15,900 thereabouts को अगर break करता है तो I think market will be in trouble again. So don't be you know don't behave like crazy in market. Please trade very very wisely. Now let us talk about tomorrow's mob level and all those things. So intraday chart wise we are moving in this channel. You can draw this channel, आप copy paste कर सकते हैं. ठीक है. Now
आज क्या हुआ मार्केट में, देखो बहुत ही सिंपल है. सो गैप अप होता है, राइट, बट ह्यूज रेजिस्टेंसेस. ओके, सो दीज वर द शॉर्टिंग लेवल्स. मॉब लेवल आपको जो है मैंने कल बताया था, जो कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वर्क आज करे हैं. दूसरा पेंडिंग गैप था यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला टारगेट ही आपका गैप फिलिंग होगा, राइट, एंड देन सम फर्दर डाउन मूव्स आर लाइकली टू हैपन. So all these targets were done. Now for tomorrow's session there are टू लेवल्स. एंड कल जो है लेवल का काम नहीं है, कल जो है ना कॉन्टेक्स्ट को समझने वाला काम है. आज देखो लेवल वाला चीज था, क्योंकि आज का कॉन्टेक्स्ट कल सेट हो गया था, तो आज इट वाज जस्ट अबाउट लेवल्स, कि अगर मॉब लेवल के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर इसे सीधे शॉर्ट करना है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा. बट कल जो है, कल थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट वाला दिन है. सो कल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा. नाउ व्हाई आई एम सेइंग सो इज बिकॉज see for tomorrow's session you have one major support at 15,900, 15,880, 15,900. Now this is a very very massive and a strong level. Okay, the chance of market breaking below this level on a sustainable basis I think is very 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 low, अनलेस कल सुबह तक कोई नया न्यूज वगैरह कुछ ऐसा है ना, वैसा कोई चीज नहीं आए, तो 15,880 900 के नीचे बाजार को कल सस्टेन करना काफी कठिन है. तो मॉब लेवल क्या होगा, देखो मॉब लेवल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मॉब लेवल होगा 16,060, जहां से आज की ब्रेकडाउन की शुरुआत हुई है, ठीक है. सो मॉब लेवल तो हमारा ये पॉइंट है. ओके, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो अ मेजर सपोर्ट. सो अब क्या करें, मार्केट तो बीच में क्लोज हुआ है, ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल जो है ना आपको अपना दिमाग लगाना होगा. सो नाउ लेट्स सी सिनेरियो नंबर 1. ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव, so there is more likely to be a gap up opening, right? So if we open gap up and sustain under the mob level, जैसे आज था gap up sustaining below the mob level, ठीक है, then you can try a short trade. So then you can try a short trade with no significant stop loss, maybe 100 points maximum निफ्टी पे, अधिक से अधिक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड यू कैन एंड अप फिलिंग द गैप, कमिंग अप अगेन, टेकिंग रेजिस्टेंस, और बाद में क्रैकिंग completely towards the target, and towards the end of the session you can close just above 900, इस तरीके से, ठीक है. तो ये हो गया एक सिनेरियो कि गैप अप बट नॉट क्रॉसिंग द मॉब लेवल, एंड आज जैसा सिनेरियो, ठीक है, आज जैसा चीज. सेकेंड सिनेरियो ये है कि यू ओपन लिटिल गैप अप समवेयर हियर, ओके, एंड इन दैट केस हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मार्केट जो है नॉन ट्रेडेबल हो जाएगा. सो जब तक मार्केट मॉब लेवल के आसपास नहीं जाता, मार्केट को शॉर्ट करना थोड़ा कठिन हो जाएगा. एंड थर्ड सिनेरियो इज यू ओपन गैप डाउन. अगर ये सिनेरियो होता है तो मार्केट जो है पहले नीचे जाएगा कम से कम 840 820 तक, एंड प्रॉब्ली आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट it should start to bounce. So there are very very complicated situations for tomorrow. Overall 100 बात की एक बात, 15,880 से 900 ये मार्केट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है. मुझे नहीं लगता मार्केट इसके नीचे जाएगा, ठीक है, अनलेस कि कुछ नया चीज ना हो, ठीक है. तो एक ट्रेड ये है कि मार्केट अगर यहाँ हमें दिखता है तो हम एक 100 पॉइंट के एसएल से मार्केट को लॉन्ग करें, and market should come back and reach somewhere near 16,050 16,100 के आसपास. तो एक सिंपल सी ट्रेड ये है, और बीच में सब इफ एंड बट वाली सिचुएशन है. दूसरा ट्रेड है कि ऊपर से शॉर्ट करो, यानी 16,050 80 समवेयर यहाँ से जो है आप शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस के तौर पे 16,160 यू कैन कीप जस्ट यस्टरडे हाई, ओके, एंड इसका टारगेट हो जाएगा 15,900 900 880, ठीक है. सो ये एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, दीज आर द टू ऑब्वियस ट्रेड्स फॉर टुमारो. एनीथिंग इन बिटवीन इज 50-50,
and that calls for using your own judgment. So tomorrow, either go with the binary mindset of this, okay, कि मैं या तो नीचे से लॉन्ग करूंगा या मैं एकदम ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, और एल्स आई वोंट डू एनीथिंग, ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट chopped off in between these two binary events. Okay, so आई विल अपडेट द ग्रुप मेंबर्स जो ग्रुप में है, मुझे जो दिखेगा समझ में आएगा मैं अपडेट कर दूंगा. That's all I have to talk about on Nifty tomorrow. And let's have a look at the Bank Nifty. So if I open the chart of Bank Nifty, आज का दिन एकदम क्रिस्टल क्लियर था. इट वाज वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू यस्टरडे नाइट कि किस तरीके से आज बाजार को अप्रोच करना है. सो 35,250 300 ये मैंने कल आपको जोन दिया था एज अ मॉब लेवल, राइट, एंड दैट इज प्रिसाइसली द टॉप फॉर टुडेज एरिया, and it cracked very very badly. So very very structured selling has come in the Bank Nifty market today. Now what do we have for tomorrow? So we are trading in this channel, and the mob level is very simple. 35,000 stands as a make or break level for tomorrow's session. So somewhere here 35,000 is the defining level. 35,050, 35,000, ठीक है. सो ये हमारा कल के लिए जो है मॉब लेवल हो जाएगा 35,050. एंड द डाउन साइड टारगेट्स आर वेरी सिंपल. 34,400, आज के लिए हमने 34,800 की बात की थी दोस्तों, राइट. सो ये हो चुका है. सो कल के लिए जो डाउन साइड टारगेट्स है दैट विल बी 34,400, and second will be 34,000 राउंड नंबर. सो देर इज अ गैप, अनफिल्ड गैप है 34,400. तो मेरे ख्याल से यही मेरा टारगेट है. इसके नीचे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक 34,400 इज अ गुड गुड इनफ लेवल. और प्रॉब्ली अगर वहां से आपको सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ या कुछ ऐसा दिखता है तो आप 34,150 के एसएल से आप लॉन्ग भी कर सकते हो. आई वोंट बी सरप्राइज कि मार्केट से आफ्टर कमिंग टू दिस लेवल मार्केट यहाँ से वापस से 34,800 850 तक बाउंस ना करे. सो यू माइट एंड अप सीइंग दिस 34,850 रैली आल्सो. Okay, and despite this rally, overall market will remain bearish because it will still be under the mob level, and that's it. So mob level के ऊपर ये तेजी में आ जाएगा, and फिर आपको 35,300 का एक टारगेट देखने मिलेगा. So my bet is tomorrow we will have expiry at 34,850. We should go 34,400. From there we must bounce again. So it will be either a down move, then bounce, something like this, okay, or a big gap up opening on the back of a global cues, and not sustaining इस टाइप की. सो दैट्स ऑल. आई थिंक आई विल वाइंड अप फॉर टुडे. आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था. सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. लेट मी जस्ट सी. या सो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें. एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग इज scheduled on August 13th and 14th. So if you are interested you can join. I will take only few selected queries uh, and then wind up. Tomorrow evening I am not there, so हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट 80% चांस है कि कल शाम को लाइव सेशन नहीं होगा. तो अगर कल नहीं होगा तो फिर सीधे वीकेंड में हम मिलेंगे संडे, संडे के दिन, टू डू द नेक्स्ट वीक एनालिसिस. एंड बॉय, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. फॉर एवरीथिंग नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर कल मैं नहीं आ पाया तो प्लीज फ्राइडे के दिन जो है आप अच्छे से काम करिएगा, एंड ज़्यादा घायल जख्मी मत होना फ्राइडे के दिन. बी केयरफुल, क्योंकि मंडे से जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है. कुछ क्वेरीज एल एन टी कल ले चुका हूँ यार, तो प्लीज़ कल का वीडियो देख लो. आइशर मोटर में अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, ये सब देखो, दीज आर ऑल रिपीट क्वेरीज. आइशर मोटर्स,
आयशर मोटर्स में इस समय 3,000 राउंड नंबर है, बिग वाइड रेंज कैंडल है, प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा इस समय, प्रॉफिट बुक करिए डिपेंडिंग ऑन वेयर यू हैव लॉन्ग्स। 35 सी ये पुराना पुराना जो है स्विंग हाई है, सो दैट इज द प्रॉफिट बुकिंग प्लेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट राउंड में 2700 के आसपास हम बाई करेंगे, मे बी 2800 के आसपास। एस बी आई लाइफ, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस। एंड गाइज अगेन आई एम रिमाइंडिंग, वी आर राइट नाउ 603 एपिसोड पे हम हैं, और जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइव सेशंस अब परसिस्ट नहीं कर पाऊंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम एंड टेक लाइव सेशन आफ्टर एंटायर डेज ऑफ वर्क। सो 10-15 और लेने की मैंने बात करी थी, तीन हो चुके हैं, सो नाउ वी हैव 12 मोर टू गो। एस बी आई लाइफ, देखो एस बी आई लाइफ अगेन इट इज एट रेजिस्टेंस, काइंडली बुक प्रॉफिट्स। टोरेंट पावर, जो चीज़ रेजिस्टेंस पे है उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, जो चीज़ सपोर्ट पे है हम वहां देखेंगे। सी टोरेंट पावर एट दी एज ऑफ नाउ it's looking bearish to me, but I will enter the shorts only when it starts to go below 472. So this is a reversal pattern, but the moving averages are providing support. So as of now it is like no clue, nothing. But iske niche gaya so it's a short. Okay, and if this holds, so then probably हम फ्यूचर में देखेंगे लॉन्ग करना है कि नहीं करना है, बट अभी कोई ट्रेड नहीं है इसमें। 470 के नीचे शॉर्ट ट्रेड आ सकता है। हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप, देखो हीरो मोटोकॉप प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग कीजिए। अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो 2800 पे, और फिर 2950 का टारगेट आ जाएगा। पीडी लाइट, पीडी लाइट इंडस्ट्रीज, लेट मी टेक। सो पीडी लाइट इंडस्ट्रीज आई थिंक इट इज बुलिश, 23-26 जाना चाहिए। ट्रेलिंग इस समय 2200 रुपए पे ट्रेलिंग होगा, 2200 रुपए पे। ठीक है, आई टी सी, लेट मी टेक आई टी सी। सो आई टी सी एज आई सेड, देखो रेजिस्टेंस है 300-320 का टारगेट है, मे बी टुमारो इट कैन गो ओवर देयर और डे आफ्टर टुमारो। सो ऑल दोज गाइज हु आर होल्डिंग इन कैश, अब 2 दिन के बॉटम पे ट्रेल करो। सो नाउ यू कैन ट्रेल बिलो 290, 288, 87, that is enough. And ITC can shoot till say 302 level tomorrow or maybe day after tomorrow. Trailing is important. Okay, trailing is important. That is the crux of the matter right now. Varun Beverages. Okay, this was a great query actually. So Varun Beverages is defying gravity. Okay, and it is simply going higher and higher. So suppose if you are holding trail to 822, 822 पे इसे जो है आप ट्रेल कर सकते हैं। सी इट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, राइट? सो ऑल टाइम हाईज पे कोई टारगेट्स नहीं होते, ट्रेलिंग होता है। सो 822 पे ट्रेल कीजिए, अगला 920 अगर आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, Balkrishna Industries. Let me see. Yeah, so Balkrishna Industries, there's no trade as such. It is at resistance. Okay, so 2400 पे you should book your profits. Harsh Vohera, please don't spam. ठीक है, please don't spam. Have some manners. PFC में fresh entry. पीएफसी, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में फ्रेश एंट्री तो कुछ नहीं है दोस्त, सड़ा हुआ स्टॉक है, और ये स्टॉक अधिक से अधिक 115 जा सकता है। कोई ट्रेड नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स दे डोंट हैव एनी ट्रेड। इट्स सिंपली द ऋतिक स्टॉक्स दैट विल ड्राइव द इंडेक्स हायर, एंड ऋतिक स्टॉक्स आर बाय द वे कमिंग नियर अ गुड सपोर्ट। अगर निफ्टी के टर्म्स में मैं कहूँ तो ऋतिक की वैल्यूएशन इस समय चल रही है 15,450 रुपए पे, और निफ्टी कहाँ है 15,950। ठीक है, सो ऋतिक अगर चल पड़ा तो उतनी ही डिफरेंस है निफ्टी का अगला टारगेट, यानी
400 पॉइंट के अगर अंतर है या 500 पॉइंट के अंतर है, तो 16,250 प्लस 450 कर देना, दैट विल बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ निफ्टी। अभी जो मैंने कहा है उसे थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा 5-6 बार आप सुनो कि ऋतिक क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। औरोबिंदो फार्मा, एज ऑफ नाउ नथिंग, स्टॉक इज अ डेड काउंटर, मैक्सिमम 575 जा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई भी चार्ट ढंग का नहीं है, द पॉइंट इज दैट कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो कि देख के लगे कि हाँ ये वर्थ है, राइट? ऑल दी स्टॉक्स दे आर ब्रूटली डैमेज्ड। अगेन जेएसडब्ल्यू स्टील जो है, वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ओवर हियर, चैनलाइज्ड मूव है, नीड लॉट ऑफ लक, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ही भरे पड़े हैं। स्टिल आई थिंक ये धीरे 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 623 रुपए तक जा सकता है। ओके, इट विल मेंटेन दिस ट्रेंड लाइन, यू कैन ड्रॉ दिस स्मॉल ट्रेंड लाइन, एंड जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता है, आई थिंक इट विल गो एंड फिल अप दिस गैप 625 623, दैट इज द टारगेट। once that is done, then I think again it will come to 570, okay, to test this level once again here, and then we will see. So what you should do is book here, and if it starts to come down, then once it reaches here again we can discuss this stock, क्योंकि possibly यहाँ से हो सकता है बाजार थोड़ा improved situation में हो, तो हो सकता है हमें यहाँ से कोई एक और अच्छा ट्रेड मिले, मे बी फॉर 650। सो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। LTTS, and also if you can write down your queries it will make more sense। आप लोग सिर्फ स्टॉक का नाम लिखते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी क्वेरी क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आप लेना चाहते हो, ऑलरेडी लिया है, व्हाट द मैटर इज, आप कुछ लिखते नहीं हो। सो LTTS इट्स अ डेड काउंटर दोस्त, एंड इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला है। दीज IT स्टॉक्स आई हैव बीन वार्निंग सिंस सो मेनी मंथ्स नाउ। भारती एयरटेल, लेट मी सी भारती एयरटेल। सो लास्ट टाइम 705 वगैरह के स्तर से भारती एयरटेल वापस से गिर गया, ठीक है। सो मैंने लास्ट टाइम इसे शॉर्ट करने से मना कर दिया था, बिकॉज आई थॉट कि वी हैव मेड अ गुड बॉटम, सो आने दो, गिरेगा तो देखेंगे। गिर गया, सही में गिर गया। तो अब क्या सिचुएशन है, देखो ये जो गिरावट है ये काफी अच्छी गिरावट है, और अभी कुछ करना नहीं है, अभी 2-4 दिन बस चुप रहना है, एंड लेट the bigger guys make a move. See, we have to be smart. If you try to front run them, what will happen, वो आपको चढ़ाएंगे ऊपर पहले और वही आपको काट देंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या होता है कि at these locations when we know that the bigger guys are going to do something, तो आप चुपके से साइड में खड़े होकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जब समझ में आ गया कि वो क्या कर रहे हैं, then you go and join them, don't front run them। so this is the place where we need to spy on them। जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं हम लोग, अपने पास भी है ना एक जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री के ऊपर, पीडीलाइट। अपना जेम्स बॉन्ड जो है ना वो कतारी लोगों के साथ बिजनेस करता है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सिर्फ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो है 2300 के आसपास है, और अभी मैं जस्ट आधे घंटे पहले ही ले चुका हूँ ये क्वेरी। 2300, 2325, these are the levels where profits should be booked, and we can actually look to buy this stock again later on। कोई गिरावट आती है तो इसमें अच्छा एक बाय ट्रेड बनेगा नियर 2175। ऑल्सो मैनी स्टॉक्स, जैसा कल मैंने बताया कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट, एट द सेम टाइम वेरी बैड। क्योंकि जब एक पैटर्न बहुत सारे स्टॉक्स में बनने की संभावना जब बन जाती है, तब मार्केट बहुत डेंजरस हो जाता है। आइदर मार्केट्स विल मूव हायर ट्रिमेंडसली और मार्केट विल क्रैश वेरी रूथलेसली। सो बी रेडी, बी रेडी। आने वाले 30 से 45 दिनों के साइकिल में ये बिहेवियर हमें दिखाई देने वाला है। सो बी रेडी बॉस, पैसे को अपने फंसा के मत रखो। पता चला बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, आप ऊपर ऊपर में सब लेके बैठ गए, और जब अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तो बाबा जी का ठुल्लू। Ultratech Cement, I think I discussed this talk day before yesterday. Ultratech, let me check Ultratech.
So Ultratech is sitting at a resistance. Okay, so if you are long, you should book profits. If you are looking for a fresh buy, uh, let me see. Okay, now the thing is, if you are looking for a fresh buy, there are two places to go about this thing. Number one, look at this big candle. Okay, now all those who attended this Sunday training, now you should know what am I going to talk about. So whenever you have a big candle like this, okay, so when it comes here at 5600, you can take a long trade. Stop loss 5485, target 6100, 6500. That's it. No if, no but, only this is the trade. Either stop loss will be hit or you will get a first target and second target both. This was the last breakdown area. So this is a massive resistance. So at least you can get till 6100 or maybe 6300 in between. So that's the thing. दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. जब तक आपके लाइक चलते रहेंगे लाइव सेशन चलता रहेगा, जब तक कमेंट्स चलेंगे लाइव सेशन होते रहेगा. नहीं तो एक दिन आओगे और लाइव सेशन बंद मिलेगा. वेरी गुड क्वेरी. किसका क्वेरी है ये? HUL. आज ये ग्रुप में भी था. सो सी HUL में कहानी क्या है? HUL में कहानी ये है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, 25 35 एक्सेट्रा, एंड द थिंग इज इट इज मेकिंग अ बॉक्स, जिसको फ्लैग भी आप कह सकते हैं. Now the problem is this guy is filled with so many types of resistances. एक ऐसा resistance है, एक ये resistance है, एक ये horizontal resistance है. तो 100 बात की एक बात की, ये स्टॉक 2600 रुपए तक जा सकता है, ठीक है, 2575 एक्सेट्रा. बट देन दिस स्टॉक नीड्स टू मेंटेन दैट बुलिशनेस. अगर ये बुलिशनेस मेंटेन कर लिया, अभी मैंने बिग कैंडल की एक बात बताई आपको. लुक एट दिस बिग कैंडल. सो व्हाट विल हैपन इज HUL विल गो ऑल द वे टिल 2720. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इस स्टॉक में आई डोंट नो कहाँ बाय है क्या है, वॉट एवर इट इज, 2400 पे आप ट्रेल कर सकते हो. सी हाउ इट इज बिहेविंग नियर 2600. अगर एक बिग बुलिश कैंडल वगैरह बना है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ट्रेल करो. फिर आप 2460 पे ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज दैट वुड मार्क द ब्रेकआउट फ्रॉम दिस फ्लैग स्ट्रक्चर. दैट वुड मार्क दैट इट हैज नेगोशिएटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस और ऑल टाइप्स ऑफ जिहादी फोर्सेस. एंड नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा इसका जो है आपका 2720. ठीक है, 2720. That's it. Let's take next query. HDFC can reach 2400 this month. HDFC Bank या HDFC? Okay, HDFC पे query है. Last query for tonight. We are approaching 1 hour time limit. Let us wind up. So HDFC जो है pathetic bearish counter है. इस पे मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि कोई ट्रेड नहीं है. जब तक ये स्टॉक 2280 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें मूव नहीं आएगा. इट विल रिमेन इन 2000 टू 2400 रेंज. 2000 से 2400 के बीच में रहेगा. ठीक है. एशियन पेंट्स पे क्वेरी है. एशियन पेंट्स, see Asian Paints, Pidilite, they move in tandem. So Asian Paint is already approaching big resistance areas. So try to book profits. I would not like to pinpoint a particular level because ये कहीं से भी गिर सकते हैं. So लमसम 100 बात की एक बात कि 3000 के आसपास जो है गड़बड़ है. अब अपनी खैरियत चाहते हैं तो यहाँ से जो है निकल जाइए समवेयर हियर, और एल्स जो गड़बड़ वाले एलिमेंट्स हैं ये आपको गड़बड़ यहाँ पे दे सकते हैं. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ व्हाट इज द गुड थिंग? द गुड थिंग इज दैट नेक्स्ट करेक्शन में हमें इन स्टॉक्स में बहुत अच्छी एंट्रीज मिलेगी. ओके, सो वी नीड टू बी वॉचफुल एंड we need to have some patience to get the correct and bigger entries in near future. This is why I am saying अभी के ये moves में पैसा मत फंसाओ. प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, डोंट बी ग्रीडी. प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो प्रॉफिट्स लॉक कीजिए, कैपिटल को थोड़ा रोटेट कीजिए, फ्री रखिए. बिकॉज अच्छे लेवल्स पे अगर आए स्टॉक्स तो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड हैव मनी. ऑल राइट, हिंदुस्तान फूड्स, कुछ फ्रेश क्वेरीज जो है इनको मैं एक दो क्वेरीज लेता हूँ एंड देन लेट्स वाइंड अप.
सो हिंदुस्तान, सी यार, ये स्टॉक में कुछ नहीं है. ओके, इट इज सिंपली गोइंग साइडवेज सिंस many months now. So there's nothing in this stock. The only thing that you can do is just trail and hope for a new high to come, and that's it. So you can trail to this 1660 level, and let us see. अगर 2400 जाता है कभी तो आप मुझे बताइए, फिर उस टाइम हम इसका रिव्यू करेंगे. नहीं तो ये इसी रेंज में रहने वाला है. टाटा एलेक्साई, लेट अस सी. अगेन आईटी बेरिश है. कोई चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है. सो स्टॉक के हालात बहुत ही गड़बड़ गड़बड़ है, नाजुक हालत में है. एंड मुझे लगता है ये वेरी इजली 7000 देयर अबाउट्स इट विल डू. 3M इंडिया, 3M, oops, I'm 3M India. Let me, okay, sorry, I let me try now. 3M India. See, okay, straight away profit booking. चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करो. स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा नियर 21,000, एंड देन एनीथिंग कैन हैपन. सो बेसिकली स्टॉक जो है, इट इज सिटिंग वेरी क्लोज, लाइक इट हैज कम वेरी क्लोज टू अ रेजिस्टेंस प्रॉन एरिया. राइजिंग वेज स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड का सदस्य है ये स्टॉक. सो व्हाट विल हैपन, टॉसिंग अराउंड फॉर मेनी डेज and then again crack. So you can take a photo of this. When it actually happens, you can just drop me a message. So that's the update on this stock. Wipro hold till 390. Havels पे query है, फटाफट क्वेरीज लेते हैं दो चार और वाइंड अप करते हैं. हेवल्स, सी हेवल्स पे शॉर्ट क्यों है, क्यों शॉर्ट है, व्हाई देयर इज अ शॉर्ट. आज का जो बिहेवियर है दैट इज बेरिश, बट देयर इज नो शॉर्ट. व्हाई, क्योंकि अभी तक इसने कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया है. सो शॉर्ट बन सकता है बट आज नहीं है शॉर्ट. सो कल ऑब्जर्व करो. ऐसे केस में जहां पे एक शॉर्ट ट्रेड बना और अगले दिन प्राइस गैप अप खुला, उसे लॉन्ग कर दो और आज के बॉटम का स्टॉप लॉस लगा दो, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, एंड यू विल सी अ बिग मूव 1260 तक. ट्रबल एरिया में है, प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, शॉर्टिंग का एरिया नहीं है. मतलब शॉर्टिंग अभी बना नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है. वरुण बेवरेज में फ्रेश एंट्री अभी नहीं ले सकते, अभी वेट करिए, जब करेक्शन आएगा तब लेंगे. बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, देखो बजाज ऑटो राइट नाउ अंडर रेजिस्टेंस है दोस्त, और ये बहुत हफ्तों से इसी रेंज में चल रहा है. इनफैक्ट ये जो लास्ट मूव था ना, ये मैंने आपको बताया था कि ये 3600 पे आएगा तब बाय करना है. इनफैक्ट ये मेरा दोनों बताया हुआ मूव है. ये यहाँ से एक बेरिश मूव एंड यहाँ से एक बुलिश मूव, राइट. सो इट इज बुलिश नो डाउट, बट अभी के लिए ये एक रेजिस्टेंस में है. सो ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स. 3900 के आसपास एक बार निकल जाइए, ठीक है. और यदि अगर ये एक ब्रेकआउट कैंडल ऐसे देता है, 4000 तक की क्लोजिंग देता है, तो फिर कैरी करना, तो फिर ये मत करो, ठीक है. अब डिपेंड करता है आपने कहाँ बाय किया है, क्या है, आपने ये सब कुछ लिखा नहीं है. एक आखिरी क्वेरी एंड देन आज जो है हम वाइंड अप करेंगे. और अदानी विल्मर पे ट्रेल करने को कल मैं कह चुका हूँ. जो भी 2-4 दिन का बॉटम है उसे ट्रेल कीजिए. इंडसइंड बैंक परमा बेरिश हमारा काउंटर है. इंडसइंड के प्रमोटर को भी ये बात पता है. इंडिया सीमेंट, लास्ट क्वेरी. इंडिया सीमेंट्स, सी इंडिया सीमेंट्स राइट नाउ बुलिश है दोस्त, एंड आई थिंक 186 शुड कम. 160 रुपीज पे आपको ट्रेल करना होगा, और 186, 185, 186 शुड कम. आई थिंक इट विल कम, ठीक है. सो दैट्स इट. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. And if you are interested to be a part of our team, you can register for the upcoming training and you will be added in the Telegram group. All the best for tomorrow. Thank you so much. Take care. Good night. Jai Mata.